Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Today we will read about earthquakes. It is considered a natural disaster because it also causes destruction to mankind in terms of loss of life and property. Let's have a look on the definition of earthquakes. Sudden and intense vibration of earth crust is called earthquake. अचानक से ज़मीन के क्रस्ट पे स्टूडेंट्स अर्थ हैव 4 different layers. First one is crust, then mantle, then outer core and inner core. We have 4 layers. First one is earth crust on which we are living, जिसके ऊपर हम रह रहे हैं. सरफेस ऑफ द अर्थ इज़ कॉल्ड अर्थ क्रस्ट. जब अर्थ के क्रस्ट में अचानक से शिद्दत से वाइब्रेशन होती है, अर्थ क्रस्ट हिलती है, मूव करती है, उसको हम अर्थक्वेक या जलजला कहते हैं. एज दिस इज़ अ सडन मूवमेंट विदाउट एनी प्री अकरिंग सिम्बल्स, प्रिडिक्शन ऑफ अर्थक्वेक इज़ नॉट पॉसिबल. क्योंकि ये हरकत अचानक से होती है बग़ैर किसी निशान के, सिंबल के, पहले से हमें इसका पता नहीं चल सकता. ये अचानक से मूवमेंट होती है, इसलिए हम अर्थक्वेक की, जलजले की पेश गोई नहीं कर सकते. फॉर एग्ज़ाम्पल स्टूडेंट्स, जैसे हम वेदर फोरकास्ट देख के हम प्रिडिक्शन कर लेते हैं कि नेक्स्ट वीक या कल जो है वो बारिश होगी, प्रिडिक्शंस हम कर लेते हैं, पेश गोई कर लेते हैं. उस तरह से हम अर्थक्वेक आने की प्रिडिक्शन नहीं कर सकते, क्योंकि ये अचानक मूवमेंट होती है और अचानक से ज़मीन के अंदर वाइब्रेशन होती है. Let's have a look at how the earthquake occur. What happened? Earth is not just one piece. It is made up of jigsaw puzzle. As you can see on your screen, that earth is broken into different pieces like a puzzle. The earth is broken around into 19 to 20 pieces, which are called as tectonic plates. ज़मीन जो है हमारी वो 19 से 20 टुकड़ों में, पीसेस में ब्रोकन है, टूटी हुई है, जिनको हम टेक्टोनिक प्लेट्स कहते हैं. इट्स मीन दैट आवर अर्थ इज़ comprised on 19 to 20 plates. As you can see on your screens that some plates are small, some are large. कुछ छोटी हैं, कुछ बड़ी प्लेट्स हैं, लेकिन हमारी पूरी ज़मीन जो है वो 19 से 20 हिस्सों में तकसीम है. आप ये कह सकते हैं टुकड़ों में तकसीम है. These plates are placed in Earth's hotter layer called mantle. As I told you before that Earth have 4 layers, that is crust, mantle, outer core and inner core. So tectonic plates are present in Earth's mantle, and this layer is partially hot. And because of its hotness, tectonic plates constantly moving. And this is the reason that these tectonic plates are constantly moving, and these plates moved around 1 to 10 centimeter each year. हर साल 1 से 10 सेंटीमीटर, जो कि बहुत माइनर है, इतना माइनर है कि हम उसको फील नहीं कर सकते, मूव करती है. And students, don't worry, not all the movement of these plates are felt by us. हम इसको महसूस नहीं कर सकते. स्टूडेंट्स, एक दफ़ा मैं दोबारा बता रही हूँ, जो हमारी जो अर्थ है वो 19 to 20 पीसेस में ब्रोकन है, जिसको हम प्लेट्स कहते हैं. ये प्लेट्स जो हैं वो अर्थ की सेकंड लेयर, जिसको हम मेंटल कहते हैं, उसके अंदर मौजूद हैं. और आपको मैंने पहले भी बताया हुआ है कि जो मेंटल है वो हॉटर लेयर है, उसका टेम्परेचर ज़्यादा होता है, और हॉटर होने की वजह से ही ये प्लेट्स जो हैं वो मूव करती हैं, प्लेट्स की मूवमेंट होती है, और इतनी हल्की मूवमेंट होती है कि हम उसको फील नहीं कर सकते. The tectonic plates are always slowly moving, but they get stuck at their edges due to friction. Students, you can see in this picture that two tectonic plates are moving, but they get stuck with each other through at their edges. किनारों से वो एक दूसरे के साथ stuck कर जाती हैं friction की वजह से. कभी कभी वो एक दूसरे के साथ stuck कर जाती हैं. And you can see that these are moving against each other. एक दूसरे की मुखालिफ सिमत में ये मूव कर रही हैं, और जो है वो एक दूसरे के साथ स्टक कर जाती हैं कभी कभी. When the stress on the edge overcomes the friction, there is an earthquake that release energy in waves that travel through the earth crust and cause the shaking that we feel.
Students, you can see in this picture that two plates are moving against each other and they got stuck with each other. And when they got stuck with each other, they will put pressure on each other. एक दूसरे के ऊपर प्रेशर डालेंगी एक दूसरे से अलग होने के लिए. जब प्रेशर डालेंगी एक दूसरे से अलग होने के लिए, तो जब प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा उनकी फ्रिक्शन से, जिसकी वजह से वे एक दूसरे के साथ स्टक हो गई हैं, तो क्या होगा कि हल्की सी मूवमेंट होगी, एनर्जी रिलीज़ होगी एक दूसरे से, ये हल्की सी अलहदा होंगी और ये एनर्जी जो है वो रिलीज़ होके अर्थ के क्रस्ट पे आ जाएगी. अर्थ की फर्स्ट लेयर तक जो है वो एनर्जी आएगी. किस सूरत में? वेव्स की सूरत में, लहरों की सूरत में ये एनर्जी जो है वो रिलीज़ होगी, क्योंकि ये प्रेशर पड़ रहा है और जब किसी चीज़ के ऊपर प्रेशर पड़ता है तो एनर्जी रिलीज़ होती है और एनर्जी के रिलीज़ होने से वेव्स पैदा होती हैं और ये वेव्स ही हैं जिसकी वजह से ज़मीन में वाइब्रेशन होती है. Students, you can see 2 points in this picture, focus and epicenter. Focus is the point at which earthquake occurs and epicenter is the point on ground level right above the focus. फोकस वो पॉइंट है जहाँ पर एक दूसरे के साथ ये प्लेट्स जो हैं वो स्टक होंगी, प्रेशर पुट करेंगे और एनर्जी रिलीज़ होगी. एनर्जी रिलीज़ होके अर्थ के क्रस्ट पर जिस पॉइंट पर ऊपर आएगी उसको हम एपी सेंटर बोलेंगे. और फोकस और एपी सेंटर बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में होता है, आगे पीछे नहीं होता, क्योंकि वहीं से एनर्जी रिलीज़ होके ऊपर अर्थ क्रस्ट पे आती है. सो दिस इज़ हाउ अर्थक्वेक अकर्स व्हेन टू प्लेट्स गेट स्टक विद ईच अदर. दे पुट प्रेशर ऑन ईच अदर एंड बिकॉज ऑफ देयर प्रेशर एनर्जी रिलीज इन द फॉर्म ऑफ waves and cause earth to shake, and we feel it and we called it earthquake. Sometimes these movements are very strong and cause intense vibration under your feet or can destroy whole city. Earthquake generates underneath the earth and release energy across. Students, now we will read about the impacts of earthquake, that what are the effects of earthquake on human life, or you can say on the property of man. The first effect is earthquake destroy human settlements, building and infrastructure, that is bridges, roads, railway lines, pipelines, water tanks and communication. Students, earthquake जो है वो तमाम तरह की सेटलमेंट पर असरअंदाज होता है और उसको तबाह कर देता है, चाहे वो घर हो, बिल्डिंग्स हो, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर हो जिसे हम ब्रिजेस कहते हैं. इंफ्रास्ट्रक्चर में हमारे पास ब्रिजेस, हमारी रोड्स, रेलवे लाइंस, पाइपलाइन, कभी कभी पाइपलाइन जो है वो अर्थ की वाइब्रेशन से फट जाती है, वाटर टैंक्स एंड कम्युनिकेशन में स्टूडेंट्स हमारे टेलीफोन जो पोल्स हैं वो आ जाएंगे. और ये सब कुछ जो है वो ज़लज़ले की वजह से तबाह हो जाता है जब जो है अर्थक्वेक बहुत इंटेंस जो होता है, बहुत शिद्दत का आता है. The second damage is indirect damage. Indirect damage includes fire, loss of water reservoirs and landslides. कभी कभी अर्थक्वेक की वजह से लैंडस्लाइडिंग भी होती है. एज आई टोल्ड यू अर्लियर इन लैंडस्लाइड वीडियो दैट व्हेन अर्थक्वेक occur and there is a vibration in earth crust, these weak rocks broke and moved downward to the roads. जब अर्थक्वेक आता है, जब वाइब्रेशन होती है, तो जो वीक रॉक्स होती हैं वो टूट कर नीचे की तरफ उनकी मूवमेंट जो है वो स्टार्ट हो जाती है, जिसे हम लैंडस्लाइड्स कहते हैं. अर्थक्वेक की वजह से कभी कभी स्टूडेंट्स लॉस ऑफ वाटर रिजर्वियर्स में आ जाएगा. कभी कभी डैम्स जो हैं वो डैमेज हो जाते हैं, जिसकी वजह से पानी जो है वो बाहर निकल आता है. सारा जो पानी स्टोर किया होता है डैम में वो जो है वो वेस्ट हो जाता है, जिसकी वजह से फ्लड भी आ सकता है. तो इसके इनडायरेक्ट डैमेजेस में फ्लड, लैंडस्लाइड, फायर, ये सारी चीज़ें जो हैं वो भी आ जाती हैं. The third effect is loss of life. The most unrecoverable damage caused by the earthquake is the loss of valuable life. स्टूडेंट्स, अर्थक्वेक की वजह से बहुत सारा जानी नुकसान भी हो जाता है, बहुत सारे लोगों की जो है वो जान भी चली जाती है और ये अनरिकवरेबल डैमेज है. अनरिकवरेबल डैमेज इसलिए है क्योंकि हम इस डैमेज को रिकवर नहीं कर सकते. जब अगर कोई बिल्डिंग जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाती है, हमारी प्रॉपर्टी डिस्ट्रॉय हो जाती है, हम उसको दोबारा से कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, लेकिन जानी नुकसान हम रिकवर नहीं कर सकते. तो अर्थक्वेक की वजह से ये अनरिकवरेबल डैमेज भी होता है. Students, now we will see earthquake in Pakistan. We will see that what causing earthquake for occurrence in Pakistan.
जियोलॉजिकली पाकिस्तान लाइज इन एक्टिव जोन एट द मार्जिन ऑफ 3 टेक्टोनिक प्लेट्स। स्टूडेंट्स, अभी मैंने आपको बताया है कि ज़मीन जो है वो 19 से 20 पीसेस में डिवाइड है, जिसे हम प्लेट्स कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, जाहिर सी बात है कि इस ज़मीन के ऊपर ही बहुत सारी कंट्रीज़ हैं। हो सकता है कि कोई प्लेट बहुत ज़्यादा बड़ी हो तो उसके ऊपर 3 से 4 कंट्रीज़ हों, कोई प्लेट्स छोटी हों, कोई कंट्री जो है उसको 2 से 3 प्लेट्स के दरमियान में वो हो, उसको सारी बाउंड्रीज़ जो हैं 2 से 3 प्लेट्स की बाउंड्रीज़ जो हैं वो लगती हों। तो हम पाकिस्तान का देखेंगे कि पाकिस्तान जो है वो कितनी प्लेट्स पर है, कितनी प्लेट्स पर आती है। सो स्टूडेंट्स, पाकिस्तान लाइज एट द मार्जिन ऑफ 3 टेक्टोनिक प्लेट्स। इसका मतलब ये नहीं, बिल्कुल भी नहीं है कि 3 पूरी की पूरी प्लेट्स पर पाकिस्तान है, क्योंकि ये प्लेट्स बहुत बड़ी हैं स्टूडेंट्स, और ये दुनिया के तमाम मुल्क जो हैं इसके अंदर इंक्लूड हैं। तो स्टूडेंट्स, 3 टेक्टोनिक प्लेट्स का मतलब ये है कि 3 टेक्टोनिक प्लेट्स की बाउंड्री हमें लगती है। हाफ़ जो है हम एक प्लेट पे हैं, हाफ़ एक प्लेट पे हैं और हाफ़ एक प्लेट पे हैं। दिस इज़ व्हाट इट मीन्स। इंडियन प्लेट इज़ कन्वर्जिंग विद दी Eurasian plate in the north and Arabian plate in the west. So students, there are 3 plates: इंडियन प्लेट, Eurasian प्लेट एंड अरेबियन प्लेट। 3 प्लेट्स की बाउंड्री पर जो है वो पाकिस्तान है। पाकिस्तान बिल्कुल सेंटर में है, और इसको इंडियन प्लेट भी लगती है, अरेबियन प्लेट भी लगती है और Eurasian प्लेट भी लगती है। सो हम बिल्कुल सेंटर में हैं 3 प्लेट्स के, इसलिए भी पाकिस्तान में जो है वो बहुत ज़्यादा अर्थक्वेक आता है। Students, as you can see in this picture that 2 plates are converging. Indian plate is converging. स्टूडेंट, कन्वर्जेंस का मतलब होता है जब 2 प्लेट्स जो है मूव करती हैं। यूजुअली वन ऑफ द कन्वर्जिंग प्लेट्स विल मूव बीनीथ द अदर। कभी कभी एक दूसरे से नीचे जो है वो मूव कर जाती हैं, लाइक एक प्लेट जो है वो ऊपर की तरफ मूव कर जाती है और सेकंड जो प्लेट है वो नीचे की तरफ मूव करती है। अ बाउंड्री एट विच प्लेट्स आर मूविंग टूवर्ड्स ईच अदर, sometimes it moves against each other and cause a land to lift into mountain forms. समटाइम्स स्टूडेंट्स, क्या होता है कि कन्वर्जेंस का मतलब होता है, कन्वर्जन बाउंड्री, हम उस बाउंड्री को कहते हैं जहाँ पर प्लेट्स एक दूसरे से सर तरफ मूव कर रही होती हैं। कभी कभी ये एक दूसरे की एक ही सिमत में मूव करती हैं और कभी कभी एक दूसरे से अगेंस्ट मूव करती हैं। इसको हम कन्वर्जेंस कहते हैं। और कन्वर्जेंस का मतलब ये होता है कि जब प्लेट्स की मूवमेंट की वजह से एक प्लेट नीचे की तरफ जो स्लाइड कर जाती है और दूसरी प्लेट ऊपर की तरफ मूव करती है, और ऊपर की तरफ मूव करने से अक्सर जो है वो माउंटेन रेंजेस भी बन जाती हैं, as you can see in this picture. The geological result of this convergence is the formation of Karakoram, Himalaya and Hindu Kush mountain ranges in the north and northwest. जैसे मैंने आपको भी बताया स्टूडेंट्स कि जब इन प्लेट्स जो हैं वो कन्वर्जन बाउंड्री पर उनकी कन्वर्जेंस होती है, वो मूव करती हैं कभी एक दूसरे की तरफ और कभी अगेंस्ट, तो क्या होता है कि एक प्लेट जो है वो दूसरी प्लेट से नीचे चली जाती है और दूसरी प्लेट जो है वो लैंड को ऊपर उठा देती है। जब वो लैंड को ऊपर उठाती है तो माउंटेन रेंजेस जो हैं वो फॉर्म होती हैं। और इसी तरह से ये जो हमारी नॉर्थ साइड पर माउंटेन रेंजेस हैं लाइक कराकोरम, हिमालय, हिंदू कुश, इसी कन्वर्जेंस की वजह से फॉर्म हुई हैं कि जब अर्थक्वेक आता है तो लैंड जो है वो ऊपर को उठती है और माउंटेन रेंजेस जो है वो फॉर्म कर देती है। This convergent boundary is also responsible for the occurrence of earthquakes in Pakistan and adjacent areas. Student, Pakistan lies in the center of 3 tectonic plates, as I told you earlier. So that's why Pakistan has been vulnerable to a number of deadly earthquakes. क्योंकि हम 3 टेक्टोनिक प्लेट्स के सेंटर में हैं, इसलिए पाकिस्तान जो है वो वल्नरेबल है अर्थक्वेक के। हमारे जो है वो बहुत ज़्यादा जो है अर्थक्वेक्स आते हैं और कभी कभी बहुत ज़्यादा इंटेंस भी आते हैं। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।